Welcome to RK Coaching Center. I am Ranjit Kumar and today I am going to start chapter 6 of class 10th of science. I hope you will show your interest and support RK Coaching Center. फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस बहुत ही कॉमन वर्ड है। आप जैसे कि जानते भी हो इसकी डेफिनेशन क्या है, लेकिन आज इसको थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे। लेट डिफाइंड इट। The process performed by living organism in order to maintain and continue life are called as life process. कोई भी जीवित प्राणी अलग अलग प्रोसेस के थ्रू अपने जीवन को मेंटेन और कंटिन्यू रखता है, इसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस इंक्लूड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन। लाइफ प्रोसेस में अलग अलग प्रोसेसेस आते हैं, जैसे कि हमने बात की न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन की, सर्कुलेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, एक्सक्रिएशन की और रिप्रोडक्शन की। इन सभी प्रोसेस में से हम सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन की लेट डिफाइंड इट। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स कैन एसिमुलेट एंड यूटिलाइज फूड फॉर देयर बेसिक नीड्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब न्यूट्रिशन लेते हैं और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। न्यूट्रिशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, नेमली ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। लेट डिफाइंड इट वन बाय वन। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स सिंथेसिस. It is the mode of nutrition exhibited by autotrophs. Autotrophs are the organisms which can synthesize organic materials from inorganic sources provided by the nature, example plants and some bacteria. Other is heterotrophic nutrition. Here hetero means others and trophic means synthesis. Let's define it. It is the mode of nutrition exhibited by heterotrophs. Heterotrophs are the organisms which derive their food from other organisms like plants and small animals. Example, animals and man. Next is the definition of photosynthesis. So let's define it. Photosynthesis is an ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात ऊपर कर चुके हैं और इसको डिफाइन भी कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस इज द फिजिको केमिकल प्रोसेस by which plants can convert light energy into chemical energy in the form of carbohydrate from simple inorganic substances like atmospheric carbon dioxide and water. नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। There are some basic raw material for photosynthesis such as carbon dioxide, sunlight, water and chlorophyll. जैसे कि हम बात कर रहे थे बेसिक रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल as its basic raw materials. Let's define raw materials in brief one by one. First, carbon dioxide. Carbon dioxide is a gas present in the atmosphere. Plants absorb carbon dioxide through small pores present on the surface of their leaves. This serves as a source of carbon to be fixed. Next is sunlight. Sunlight is an important factor which determines the process of photosynthesis. Light is absorbed by the chlorophyll pigment in chloroplast of the leaf. Intensity, quality, and the duration of light influence the process of photosynthesis. Photosynthesis takes place effectively in red and blue light
whereas it is poor in green light. Other is water. Water required for the process of photosynthesis is absorbed by the roots. Absorbed water is transported to leaves by special tissue called as xylem tissue. Energy absorbed from sunlight splits the water molecules. Last is chlorophyll. Chlorophyll is the green colored pigment present in the chloroplast of the plant's cell. Chlorophyll component photosystem and photosystem second are responsible to trap energy from the sunlight. This trapped energy is used to split the water molecules. Sunlight and water are essential components for photosynthesis. Sites of photosynthesis. Leaves are considered to be the sites of photosynthesis, hence they are called as food factories of the plants. क्योंकि पत्तों में ही भोजन बनता है यानी खाना बनता है, इसलिए पत्तों को यानी प्लांट को कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज. Leaves possess small pores called as stomata on both their surfaces. पत्तों पर छोटे छोटे छिद्र यानी छेद बने होते हैं. Stomata are the structures which help in the exchange of gases और ये हेल्प करते हैं गैस के एक्सचेंज में. Opening and closing of stomata are brought about by the guard cells present in them. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटल पोर है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, थिन वॉल, वैक्यूल, गार्ड सेल. तो स्टोमेटा गार्ड सेल ओपन कब होता है और क्लोज्ड कब होता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन in point of board exam. Next, leaves are rich in plastids. Green colored plastids are chloroplast. जैसे कि हम यहाँ पे देख चुके थे, ग्रीन कलर का ये क्लोरोप्लास्ट है, इसी में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. यही क्लोरोफिल बहुत इम्पोर्टेंट पिगमेंट है जो सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप करता है. ओवरऑल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने अभी तक जितना भी प्रोसेस पढ़ा उसको एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं. 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll give rise C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Photosynthesis involves two types of reaction, namely light reactions and dark reaction. फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं और डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन क्या होती है? लेट डिफाइन इट. लाइट रिएक्शंस आर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. जैसे कि हम बात कर रहे थे, देयर इज टू टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन से मतलब है हमारा डे में जो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है. दूसरी जो है डार्क रिएक्शन जो रात के समय होती है, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. These reactions happen only in the presence of sunlight. The photosynthetic pigment trap the energy from the sunlight. As a result of these reactions,
Energy rich molecules like ATP and NADPH2 are synthesized. Photolysis of water molecules results in the release of oxygen as a byproduct. जैसे कि हमने अभी बात की बाई प्रोडक्ट, तो ये रहा हमारा बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन। तो इसके प्रोसेस देखो, पहले हमारा ATP बनता है, NADPH2 बनता है, ये ATP एंड NADPH है क्या? तो ATP स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH2 निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट. It carries electrons. Next is dark reaction. Dark reaction are independent of light. जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो अंधेरे में होती है, यानी रात में. Energy rich molecules like ATP and NADPH2 are utilized in this reaction. इसमें भी ATP और NADPH2 यूटिलाइज होता है. डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है. डार्क रिएक्शन इन्वॉल्व केल्विन साइकिल ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट. C3 pathway is also known as Calvinic cycle. Pathway involves set of carbon reaction which are catalyzed by the enzyme Rubisco. जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एंजाइम रूबिस्को की. रूबिस्को का काम क्या है? तो इसका काम है टू सिंथेसाइज 3 कार्बन कंपाउंड 3 phosphoglycerate from 5 carbon compound ribobiphosphate. तो हमने देखा कि कैसे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन काम करती है. साथ ही इसमें कुछ नोट करने वाली बात है, वो है कि केल्विन साइकिल जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं. नोट करने वाली बात यहाँ ये है, फोटो रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व्ड हेयर. And second is optimum temperature required for photosynthesis is between 20 डिग्री सेल्सियस to 25 डिग्री सेल्सियस. यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए 20 डिग्री तापमान से 25 डिग्री तापमान तक चाहिए होता है. दिस साइकिल इज लेस एफिशिएंट इन यूटिलाइजिंग CO2. यहाँ आप केल्विन साइकिल का फ्लो चार्ट देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं. एक मिनट आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको केल्विन साइकिल, एंजाइम रूबिस्को, ATP, NADPH2 ये सब क्या होता है सब यहाँ पे समझ में आ जाएगा. इसके बाद हम बात करते हैं इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis can be split into 3 basic events. First, light energy is absorbed by the green colored pigment chloroplast. Chlorophyll present in the chloroplast. और जैसा कि हमें पता है ये क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. Second is absorbed light energy is converted into chemical energy and utilized in photolysis of water. और इस एनर्जी को यूज़ करके ये वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इनटू द लीव्स इज रिड्यूस इनटू कार्बोहाइड्रेट. इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें यूज़ होता है. ये हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है. अभी मैंने जितना भी रीड आउट किया है वो आपको यहाँ पे सारा मटेरियल मिल जाएगा.
ये हमने गार्ड सेल के बारे में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ये रही इक्वेशन। इसके बाद डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ से लेकर ये है लाइट रिएक्शन की फुल एक्सप्लेनेशन, एंड डार्क रिएक्शन की फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ तक है। और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हमारे यहाँ हैं। इन ब्रीफ डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन आप यहाँ टेबुलर फॉर्म में समझ सकते हैं। बात करते हैं, स्टार्टिंग में हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और उसके रॉ मटेरियल्स के बारे में जाना था। तो यहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स को वन बाय वन रीड आउट करेंगे। फर्स्ट है लाइट। फर्स्ट हमारा लाइट है। तो क्वालिटी ऑफ लाइट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है कि जो लाइट है, रोशनी, वो भी फोटोसिंथेसिस के रेट को इन्फ्लुएंस करती है, यानी प्रभावित करती है। अगर कम, जैसे कि हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेटिक रेट इज़ हायर इन रेड एंड ब्लू लाइट, इट इज़ वेरी पुअर इन ग्रीन लाइट। जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है वो रेड लाइट में और ब्लू लाइट में ज़्यादा होता है, और वहीं ग्रीन लाइट में ये कम होता है ड्यू टू वेवलेंथ। ये इस वेवलेंथ के बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑल्सो डिटरमाइंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। डे लेंथ ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो an important factor for photosynthesis to be effective. Essentially of sunlight and chlorophyll are demonstrated using starch test. जैसे कि आपने क्लास 7th या 8th में स्टार्च टेस्ट भी किया होगा, क्योंकि सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों ही बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ये हमने इक्वेशन के माध्यम से भी देखा था। प्लांट्स obtain water from soil by the process of absorption performed by roots. प्लांट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो सॉइल से करते हैं बाय रूट्स। सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग कार्बन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइज 0.04% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर। हमारे पूरे वातावरण में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में पाया जाता है। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट एनहेंसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड का रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम होगा। बट टू मच ऑफ इट्स कंसंट्रेशन प्रूव्स टू बी टॉक्सिक टू द प्लांट्स। लेकिन अगर हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को प्रोवाइड करवाते हैं तो ये उसके लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। टॉक्सिक का मतलब जहरीला या नुकसानदायक। कार्बन डाइऑक्साइड इज reduced टू कार्बोहाइड्रेट इन द डार्क रिएक्शन। थर्ड इज वाटर। वाटर बीइंग अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बना था। वाटर बीइंग अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल डिज़ोल्व इन इट। जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, सभी जितने भी सॉइल में मिनरल्स पाए जाते हैं वो सारे वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स इज एब्जॉर्ब बाय रूट एंड इज कैरिड टू द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू जाइलम टिश्यू। जैसे कि हम जानते हैं प्लांट में 2 टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम।
जाइलम जो है वो वाटर कैरियर होता है एंड फ्लोएम इज फूड कैरियर। जाइलम इज वन डायरेक्शनल यानी यूनिडायरेक्शनल एंड फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल। 1% of absorbed water is utilized and the remaining water is released during photosynthesis। एब्जॉर्ब किए हुए पानी में से केवल 1% पानी ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ आता है। बाकी फोटोसिंथेसिस में जो पानी यूज़ नहीं होता है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है क्या? द प्रोसेस इन विच वाटर comes out through the teeny pores also known as stomata. This process is known as transpiration. नेक्स्ट अगर हम बात करें, लास्ट जो हमारा टॉपिक बच गया है, तो वाटर सर्व्स एज अ सोर्स फॉर ऑक्सीजन विच इज़ रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। और वाटर ही लास्ट में स्प्लिट होता है, जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में देखा था HO2 + H2O। तो वाटर स्प्लिट होता है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है। लास्ट है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ये प्लेज द वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी फोटोसिंथेसिस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Chlorophyll absorbs blue light effectively and than the red light, but proves to be a poorer absorber of green light. Chlorophyll ब्लू लाइट और रेड लाइट ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है बजाय ग्रीन लाइट के। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। It traps the solar energy and converts into chemical energy, which is utilized in the dark reaction for photosynthesis to form glucose। जो सूरज की रोशनी होती है वो ये ट्रैप करता है और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि डार्क रिएक्शन यानी नाइट रिएक्शन में जो रिएक्शन हमने अभी पढ़ी थी, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी देखा था। रुबिस्को एक एंजाइम था, उसके प्रेजेंस में कैल्विन साइकिल फोटो रेस्पिरेशन किया था, वही ये डार्क रिएक्शन है और ये लास्ट में ग्लूकोज बनाता है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल के भी टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोफिल ए होता है ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फ्रॉम वेवलेंथ ऑफ ब्लू वायलेट एंड ऑरेंज रेड लाइट। वहीं क्लोरोफिल बी more soluble in polar solvent because of wavelength. Its carbonyl group yellow color of green light। अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी के फॉर्मूले की, तो वो मैंने यहाँ पे डिनोट किया है C55H70 MgN4O6। तो ये हमारा एक छोटा सा फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक था जिसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कम्प्लीटली डाइजेशन के ऊपर होगा, जिसे हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ फ्लो चार्ट के साथ पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।